Now nutrition in human beings. We have a well developed system, okay, in which the digestion of the food takes place. Okay. Like other animals, we are also holozoic, that our nutrition that depends upon holozoic mode of heterotrophic nutrition, that is it takes place in 5 steps: ingestion, then digestion, okay, after that absorption, assimilation, and finally egestion. Okay. But first of all, we do what are the various organs of our digestive system, what our digestive system is consisted of. Okay. If I give you a diagram, digestive system, we have a complete digestive system. We start from mouth. Okay, so mouth हमारी opening है through which we take in the food. Okay, and anal end जो है that is the anus, that is the exit through which the feces are thrown out, that is the undigested food. So our opening is mouth and the ending of the digestive system is anus. Okay. So first of all, let me give you a diagram. Okay. So this starts from mouth. Okay. So this is the after mouth, then there is a long food pipe. Okay. After food pipe, it comes stomach, a muscular pouch-like structure. Okay. So this is stomach. Okay. Now stomach जो है then from here the small intestine starts. To see the diagram, how you have to make the diagram, very easy to make with me side by side. Okay. Now from here, this is small intestine. Then a gland called liver. Then liver, along with the liver there is gallbladder. There is a leaf-shaped gland here, which is pancreas. Okay. Now let me label these. So this is food pipe, named as esophagus. So this is mouth, esophagus, then stomach. Stomach में जो anterior end है, this anterior end, it is known as the cardiac end of stomach. पिछला, P से पिछला, तो पिछला जो है posterior part, that is pyloric end of stomach. Pyloric end. Then this is C shape. यहाँ से देखो after stomach the small intestine starts. तो small intestine के actually 3 parts हैं जो ये बिल्कुल C बन रही है यहाँ पर small c. तो this C part जो है that is known as this part. It is duodenum. A gland, liver, largest gland of our body. Okay, exocrine or endocrine, I'll tell you. Exocrine gland है ये largest. Then this is gallbladder. Okay, gallbladder. Then duodenum. Okay, this one is pancreas.
Then this is small intestine. Small intestine में after duodenum जो middle part है, that is known as jejunum. And the highly coiled part जो है, that is ileum. So these three together make small intestine. Three parts. Then this whole is the large intestine. अब large intestine में this one is rectum, okay? And this whole is known as the colon. Okay? Colon में अब ये देखो, this is ऊपर चढ़ रहा है, ये straight हो गया, okay? और ये downward नीचे की तरफ आ रहा है. तो अगर हम इसको तीन parts में लिखें तो this is ascending colon. Ascending colon. Okay? और ये जो है दिस इज ट्रांसवर्स कोलन. एंड दिस वन इज डिसेंडिंग कोलन. एंड कोलन एंड रेक्टम दे टुगेदर मेक दिस होल. ओके, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. And finally this opening is called anus. So this is a digestive system of human beings. We'll do in details now, okay, that what is there. देखो, because our पहले मैं थोड़ी सी आपको सारे सिस्टम के मतलब what are there in our system वो कराऊंगी. फिर how nutrition takes place, कैसे digestion कैसे होती है, process digestion कैसे होगा. okay? देखो सबसे पहले क्या है, we have a mouth. माउथ में हमारे क्या क्या है, माउथ में टीथ, tongue, okay, and then salivary glands. Okay, so then first let me tell you that what are the various parts. Okay, so this is the diagram, and after diagram let me write here. Okay, mouth contains, so mouth is the first opening of our digestive system. So mouth contains teeth, okay, tongue, and glands में salivary glands. अब teeth, okay, teeth we know that we have 4 kinds of teeth. Okay, 4 तरह के दांत होते हैं हमारे. teeth जो है, let it be teeth, okay, 4 types के हैं. okay, कौन कौन से, incisors, canines, premolars and molars. देखो आप अगर देखो जो फ्रंट के 2 दांत हैं इनको कहते हैं इंसीजर्स. उसके बाद साइड वाले 2 कैनाइन्स. कैनाइन्स के बाद थोड़े पीछे चले हम तो प्रीमोलर्स, और बिल्कुल जो जाड़े हैं हमारी उनको मोलर्स. ओके, तो इंसीजर जो ऐसे रोटी को हम ऐसे काटते हैं. ओके, तो दिस इज ये कटिंग टीथ है. दीज आर द कटिंग टीथ. कैनाइन्स टीयरिंग है, टीयरिंग का काम करते हैं. ओके, एंड दे डू द च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. both of them, chewing and grinding. रोटी को पीसना, रोटी को चबाना, वो सब प्रीमोलर्स और मोलर्स का फंक्शन है. okay, तो कटिंग, टीयरिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. अगर कुछ और थोड़ी सी आई टेल यू सम मोर नॉलेज अबाउट द टीथ, कि टीथ के वी हैव 2 सेट्स इन अवर लाइफ टाइम. वन आर नोन एज द मिल्क टीथ, okay, एंड देन दे आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ जो है बच्चों में वो कैन में टोटल उनका नंबर 20 होता है. और जैसे जैसे एडल्ट्स हो जाते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टीथ जो है वो 32 है. ओके, 32 में 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. तो अगर आपको मैं डेंटल फॉर्मूला बताऊं तो हमारा डेंटल फॉर्मूला 2123 डिवाइडेड बाय 2123 है एडल्ट्स में. ओके, इन एडल्ट्स देखो इसका क्या मतलब है. 2 पेयर्स ऑफ इंसीजर्स, 1 पेयर ऑफ कैनाइन, 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर्स एंड 3 पेयर्स ऑफ मोलर्स. तो टोटल ऊपर कितने हो गए, 2 1 + 3 2 5 और 3 8 पेयर्स इन द अपर जॉ, 8 पेयर्स इन द लोअर जॉ. ओके, तो टोटल देयर आर 32 टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स इन द एडल्ट्स. ओके, सो दिस इज, so these are the permanent teeth. So 2 1 2 3, well, these are in pairs. 2 pairs incisors, 1 pair canine, 2 pairs premolars and 3 pairs molars. Okay, so this is, so after the teeth का main function क्या है, they masticate the food, they cut the food, they grind it, chew it. Okay, अब फिर टीथ के साथ साथ फिर
हमारे माउथ में, मैं इसकी फिजियोलॉजी आपको बाद में बताऊंगी कि क्या इसका केमिकल एक्शन क्या है, लेकिन माउथ में फिर कुछ हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है माउथ में, देयर आर 3 पेयर्स। लेट मी रब फ्रॉम दिस साइड। तो दिस इज स्लाइवरी ग्लैंड्स। देयर आर 3 पेयर्स हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के, 3 पेयर्स। और उनमें कौन कौन सी हैं? पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड थर्ड वन इज सबमैक्सिलरी। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में करा रही हूँ एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा। पैरोटिड जो है ये जो हमारे कान है इसके अंदर की साइड बिलो द ईयर, क्या यहाँ पर होते हैं। सबलिंगुअल जीभ के नीचे, क्या अगर आप अपनी जीभ उठाओगे तो यहाँ आपको 2 स्पॉट से नजर आएंगे, तो सबलिंगुअल। सबमैक्सिलरी लोअर जॉ के एंड्स पे, क्या लोअर जॉ के। तो दिस इज, तो दीज आर द 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। तो माउथ कंटेन्स अ टंग, 4 टाइप्स ऑफ टीथ एंड 3 पेयर्स ऑफ these salivary glands। तो ये माउथ के अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ईसोफेगस जस्ट एक ट्यूब है जो कनेक्ट कर रही है माउथ को स्टमक के साथ। ईसोफेगस में कोई केमिकल एक्शन फूड पे नहीं होता, लेकिन ईसोफेगस और पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फुल कैनाल, इट इज अ कैनाल टाइप स्ट्रक्चर। तो माउथ से लेके इनस तक देयर आर मूवमेंट्स, तो इट कीप्स ऑन मूविंग होल ऑफ द गट। तो गट की जो मूवमेंट्स है, थ्रू आउट द गट द मूवमेंट टेक्स प्लेस, एंड दीज मूवमेंट्स इन अवर गट आर नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स इन द, तो गट जो है कीप्स ऑन मूविंग सो दैट द दिस ऑल द केमिकल्स दे शुड गेट मिक्स विद द फूड इन एन एफिशिएंट मैनर। दैट्स व्हाई। सो दिस देन इट कम्स इनटू द स्टमक। अब स्टमक में देयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक से यहाँ से एंटर करती है, फूड एंटर करता है, देयर इज अ स्फिंक्टर हियर। तो स्फिंक्टर जो है वो क्या काम करता है कि डज नॉट लेट द फूड टू गो बैक इनटू द ईसोफेगस। वन वे एंट्री है, फूड कम्स इनटू द स्टमक एंड इट कैन नॉट गो बैक। तो स्टमक में देन केमिकल एक्शन टेक्स प्लेस, इट हैज द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करती हैं वो मैं फिजियोलॉजी में आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर स्टमक में, स्टमक के बाद जो जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो इट बिकम्स लाइक अ पल्प, जैसे एक फलों का गुद्दा होता है, तो इट बिकम्स अ पल्प। तो पार्टली डाइजेस्टेड इट बिकम्स इन द स्टमक। स्टमक के बाद देन इट कम्स इनटू द दिस सी शेप ट्यूब, दैट इज डियोडिनम। अब डियोडिनम में लिवर से भी सिक्रीशंस डियोडिनम में आती हैं और पेंक्रियास से भी। तो जो पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस हैं दे आल्सो गेट मिक्स्ड विद द फूड इन द डियोडिनम, और लिवर की सिक्रीशंस भी हियर दे गेट मिक्स्ड विद। तो दोनों की सिक्रीशंस का जो एक्शन है, द केमिकल एक्शन, दैट टेक्स प्लेस इन डियोडिनम। डियोडिनम के बाद फिर जैजुनम में कोई केमिकल एक्शन नहीं है। देन इलियम, इलियम में फिर केमिकल एक्शन फूड के ऊपर है, क्या फूड इज डाइजेस्टेड। तो डाइजेशन जो है दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्टमक ग्लैंड्स, लिवर, पेंक्रियाटिक ग्लैंड्स एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो इससे फिर डाइजेशन का पार्ट फूड जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है ये वेरी करती है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे हैव टू टेक दे आर द प्लांट ईटर्स, और कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं दे आर द फ्लैश ईटर्स। तो इन हर्बीवोरस एनिमल्स इट इज लॉन्गर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कार्निवोरस। इसकी लेंथ ज़्यादा होती है बिकॉज डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है जो प्लांट प्रोडक्ट है, तो डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इज कैन बी नॉट एज ईजी एज द डाइजेशन ऑफ मीट। तो मीट की डाइजेशन ईजियर है एज कंपेयर टू डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सो दैट्स व्हाई इन हर्बीवोरस द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्निवोरस। फिर पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे इलियम जो पार्ट है इसकी जो वॉल्स है, दे हैव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये भी मैं आपको क्या नाम है डिटेल्स में इसकी डायग्राम बना के दिखाऊंगी। तो दिस इज, तो दैट इज, तो इसमें अब डाइजेशन हो जाती है। डाइजेशन के बाद जब फूड इज डाइजेस्टेड है फिर फूड जो है इट गोज इनटू द दिस लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें जाता है। तो यहाँ पे ये जो एंड है वेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दे आर मीटिंग, तो इस एंड को हम कहते हैं सीकम। वी कॉल इट cecum, where the small and large intestine are meeting. So this is then it comes into the large intestine.
लार्ज इंटेस्टाइन में फूड से जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है दैट इज डन, तो वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट गोज इनटू द एनस और थ्रू द एनस इट इज इजेस्टेड आउट। जो अनडाइजेस्टेड बच जाता है खाना, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो दैट इज थ्रोन आउट थ्रू एनस। तो इस तरह से हमारा ये सारा मतलब कि कैसे कैसे फूड की मूवमेंट्स है। अब फूड पे डिफरेंट केमिकल एक्शंस क्या है वो वन बाय वन अब हम करते हैं। अच्छा ये देखो, दिस वन ट्यूब आल्सो आई हैव मेड। तो ये जो ट्यूब है वेयर द सीकम के एंड पे, दिस ट्यूब इज नोन एज, ये आप एक अगले चैप्टर में पढ़ोगे, दिस इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये अपेंडिक्स जो है नाउ दिस वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब कि हमारी बॉडी में इसका कोई यूज नहीं है। तो लेकिन समटाइम्स ये पड़ी हुई है बस हमारी बॉडी में, इट इज अ स्मॉल ट्यूब, नैरो ट्यूब है, बट इन समटाइम्स इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन सम एट सम एज, देन सर्जिकली इट हैज टू बी रिमूव्ड। क्या आपने सुना भी होगा अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कहते हैं सर्जरी से, तो दिस ट्यूब हैज टू बी गेट रिड ऑफ बाय सर्जिकल ऑपरेशंस, तो अदरवाइज इट इज देयर। सो दिस इज द ये हमारी एक डाइजेस्ट सिस्टम में मतलब कि व्हाट आर द वेरियस मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम। नाउ हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ऑर्गन्स, या डिफरेंट ऑर्गन्स, तो वो हम वन बाय वन करके करते हैं। देखो ग्लैंड्स जो एसोसिएटेड है इस सिस्टम में, देखो देयर आर सम ऑर्गन्स एंड सम ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कौन कौन सी एसोसिएटेड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक, सबसे पहले तो स्लाइवरी ग्लैंड्स माउथ में, फिर यहाँ पर कौन सी आ गई? गैस्ट्रिक, उसके बाद लिवर, फिर पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल। तो ये 5 टाइप्स की ग्लैंड्स हैं विच आर प्रेजेंट इन अवर दिस डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दिस इज the physiology of now digestive system that we will do in our next lecture.